Hello student, welcome to Unacademy. I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. In this session, we are going to discuss about DC gain of transfer function. So my dear students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे GATE and ESE Electrical Electronics in 10. As you all know, this YouTube channel dedicated for EC Electrical Iron and यहाँ पे हम स्टूडेंट हर एक दिन 10 मिनट के अंदर अंदर कंसेप्ट सीखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड DC gain from the transfer function. So student, I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. I am having 9+ year teaching experience for GATE and ESE. और भी डिटेल में आप पॉइंटर्स यहाँ पढ़ सकते हैं. बिकॉज वीडियो केवल 10 मिनट का है तो फटाफट से टॉपिक पे आता हूँ मैं. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दिया जाए हाउ टू फाइंड आउट द डीसी गेन. सो आइए उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं इस गेट क्वेश्चन के साथ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स 2005. So what is the open loop DC gain of a unity negative feedback system having the closed loop transfer function this? तो स्टूडेंट यहाँ पे दो कंसेप्ट मर्ज हुआ है, एक तो ओपन लूप पूछा है, एक तो डीसी गेन पूछा है. अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस क्वेश्चन में CLTF क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था और वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये था s+4/s² प्लस 7s+13. So my dear student, whenever examiner asking for only DC gain, अभी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली बात कर रहा हूं कि अगर CLTF का DC गेन निकालना होता, इफ एग्जामिनर आस्किंग फॉर द DC गेन ऑफ CLTF, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का अगर आपको DC गेन निकालना है, then student you have to convert the zeros and poles term like that 1 plus TS, and this form is known as time constant form. This form is known as time constant form. So it means to find out the ultimate gain constant K. अगर मैं आपको DC gain का सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं, so that you will never wrong in any question. Any question will come, you have to remember this definition. DC gain, it is a ultimate constant gain K after converting the transfer function, after converting the given transfer function into time constant form. इसका मतलब अगर आप इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, then you need to take 4 outside the bracket. When 4 will become outside, you will get 1 plus s by 4. Similarly, in the denominator, to convert in the time constant, you need to take 13 outside the bracket. So when 13 will be outside, 13 by 13 will be 1 plus 7s by 13 and plus s square by 13. Now my dear student, this is the ultimate coefficient, the ultimate constant gain K after converting the time constant into time constant form, after converting the transfer function. ये ट्रांसफर फंक्शन है, देख लो, इसको हमने टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जीरो और पोल्स को, तो जो अल्टीमेट कांस्टेंट आया ये 4/13 आया. तो ये 4/13 इट इज ए डीसी गेन ऑफ CLTF. स्टूडेंट, इट इज ए डीसी गेन ऑफ CLTF, इट इज ए डीसी गेन ऑफ CLTF. लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा था, फाइंड आउट द ओपन लूप डीसी गेन. इसका मतलब वो OLTF का डीसी गेन पूछ रहा है. बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएंगे, बट ऑप्शन नंबर ए यहां रॉन्ग है. पहली बात, आपको CLTF से OLTF निकालना आना चाहिए. स्टूडेंट, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक में हमेशा एडवांटेज होता है, आपको मैंने बता दिया था, यू कैन गो फॉर NS/DS अप्रोच. इफ यू हैव नो आइडिया अपॉन NS एंड DS अप्रोच, देन यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस को जरूर देख लीजिए. सो यू विल गेट NS अपॉन, here is DS plus NS, my dear student. So now you need to reply once कि ये CLTF है, NS/DS plus NS. अगर आपको OLTF निकालना है यहां से, then you have to subtract the NS part from the denominator. So ultimately क्या है स्टूडेंट, जरा बताओ. इस क्वेश्चन में ये CLTF था, अगर इस CLTF से OLTF जनरेट करना चाहते हो तो इस CLTF का जो अल्टीमेट डिनोमिनेटर है ना, इसमें से आपको न्यूमरेटर को माइनस कर देना है. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर में, s+4. चलो बताओ जल्दी से OLTF क्या मिल गया आपको. स्टूडेंट, यू कैन रिलेट योर OLTF विल बी s+4 अपॉन s² प्लस 7s. अच्छा, 7s माइनस s will become 6s actually, and 13 minus 4 will be 9. So my dear student, this is the OLTF for a unity negative feedback. मतलब HS तो 1 था यहाँ पे. Always remember, if HS is 1, if you are having unity negative feedback system, then only you are supposed to get
then only you are supposed to apply this approach ds upon ns, otherwise you are not supposed to apply. So my dear student, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4/9. सो रिमेंबर दिस इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व. बहुत से बार स्टूडेंट डायरेक्ट डीसी टर्म, डीसी गेन है तो एस को जीरो कर देते हैं. एस को जीरो करने पे इस वाले क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट. लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, मान लीजिए कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दे रखा है 2/s इंटू एस प्लस 5, और अगर आपको डीसी गेन पूछ रहे हैं, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन पूछ रहे हैं और आपको केवल ये पता है कि s इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो s इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहाँ पे, तो s इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ 2/जीरो बन जाएगा और इंफिनिटी बन जाएगा, जबकि इंफिनिटी डीसी गेन नहीं है इसका, ये रॉन्ग है. बताओ इसका डीसी गेन क्या है? तो आपको कन्वर्ट करना है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, तो 2 तो ऊपर बाहर रहेगा, 5 नीचे कॉमन लेना पड़ेगा, तो s के साथ में बढ़ेगा 1 प्लस s अपॉन 5. अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन का डीसी गेन कितना आया? 2/5. सो डीसी गेन फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज 2/5, नॉट इंफिनिटी. डायरेक्ट s इक्वल टू जीरो अगर पुट करते हो तो बहुत सी बार जब s डोमिनेटिंग होगा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है. तो याद रखो, मैंने जो बोला उसको याद रखेंगे. DC gain, it is a ultimate gain constant, it is a ultimate constant gain k after converting the given transfer function, after converting the given transfer function into time constant form. चलिए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल 15 का क्वेश्चन है अच्छा, जिसमें डीसी गेन का कंसेप्ट पूछा है. तो बात करते हैं, आइए. e की पावर -2t साइन ऑफ 5t और प्लस e टू द पावर -2t cos of 5t फॉर ए यूनिट इंपल्स इनपुट. अच्छा, इंपल्स इनपुट है तो फायदा क्या है? देखो, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन. तो अगर आपको इंपल्स रेस्पॉन्स दे रखा है, आप सिंपली उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दीजिए, क्योंकि आर एस तो 1 ही होता है और समथिंग अपॉन 1 तो 1, समथिंग अपॉन 1 तो समथिंग रहेगा, किसी में भी 1 का डिवाइड करोगे तो वही रहेगा. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स मतलब इंपल्स का लाप्लास 1 होता है, तो आर एस का वैल्यू 1 आया. तो जब आप इसका लाप्लास लोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर -2t प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एक्चुअली. सो यू शुड गेट 5/s+2 का होल स्क्वायर और +25, एंड हियर यू विल गेट कोस का होता है s अपॉन, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो रहा है, तो s+2 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर +25. सो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू टेक द LCM you will get s square plus 4s plus 4 plus 25 is 29, and here you will get s plus 7. So that is why student correct answer is what? When you ultimately convert in time constant. अच्छा, इस क्वेश्चन में s इक्वल टू जीरो लगाओगे तो भी वही आंसर आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे s कोई बाहर डोमिनेटिंग बाहर नहीं निकल रहा है. तो इसका मतलब स्टूडेंट जीरो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, लेकिन सब में नहीं लगा सकते, आपको थोड़ी देर पहले बताया. बट अगर यहाँ भी आप आइडियल वे में निकालना चाहते हैं, देन यू नीड टू टेक 7 आउटसाइड, सो 1 प्लस s/7 अपॉन 29 आउटसाइड, so you will get 1 plus 4 upon 29 into s plus s square upon 29. Now you can feel that this is the ultimate constant after converting the transfer function into time constant form. This is the time constant form. The first coefficient should be 1. You need to take outside the s coefficient, highest power of s you need to take outside. So what is the answer, my dear students? 7/29. If you have calculator, you can calculate this, and ultimate value you need to type here because it is a numerically entry question. So my dear student, इस वीडियो में हमने सीखा है how to find out the DC gain for any transfer function. Other question I am going to take in the next video. If you wish to take the subscription on the Unacademy, you can use this code live ANK. This live ANK code, when you use this code, student, you will get my personal guidance program, and you will get 10% maximum discount also. हेलो स्टूडेंट, सो याद रखें ये कोड live ANK to get the maximum discount on the Unacademy platform. You can contact this number also, 9079330095. If you are looking for a good rank, then the Unacademy will be the best opportunity for you, for all the sincere students who really want to get the good knowledge of technical subjects. So student, bye bye, take care, see you, we will meet in the next video.